بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ یہ پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا صحافی امتیاز میر کے حوالے سے پچھلے ماہ ان کا ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس میں پولیس اسٹیشن سعود آباد کی حد میں کالا پل کے قریب ان کو کچھ کرمنلز نے ٹارگیٹ کیا اور الٹیمیٹلی ہاسپٹل گئے اور ہاسپٹل میں ان کی انتقال ہو گیا انفارچونیٹلی۔ تو اس سلسلے میں ان کے فیملیز نے امیڈیٹلی FIR بھی کٹوا دی۔ حالانکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد FIRs کٹنی چاہیے، لیکن صحافیوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، تو یہ ایک ایشو ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہماری دو ہیں، انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کے کراچی پولیس کے ساتھ یہ انفارمیشن گیدر کی اور ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، جس میں 4 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں، جن سے انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے اس کو مانا ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک سے ایک تنظیم ہے جو اس کو ہینڈل کر رہی تھی ان 4 لوگوں کو، اور وہاں پر وہ جو ہینڈلر ہے موجود ہے، اور زینبین جو ہے ان کی آؤٹ فٹ، ان کا یہ کارنامہ ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ تھار اللہ ان کا جو سیکنڈ جو پھر وہ ہے اپنا لشکر سار اللہ نامی سار اللہ سواد، انہوں نے یہاں پر یہ 4 لوگ ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں، جس میں جلال زیدی ہیں، یہ شوٹر ہے، اور شہاب ولد اصغر یہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے بائک پہ، اور جو ریکی کیے ان میں احسن اور فراز احمد یہ ریکی کرنے والوں میں سے تھے۔ ویپنز ملے ہیں، 4 عدد ویپنز ہیں جو پسٹلز ہیں، اور اس کے ساتھ 2 موٹر سائیکل بھی ملی ہیں۔ اجلال سید اجلال، تو پریس ریلیز دے دیں گے آپ کو، تو دیکھ لیجئے گا اس میں۔ تو اس میں یہ سب انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور یہ فولڈ آؤٹ ہو گیا ہے معاملہ، اور کلیئر کٹ کیس ہے، اس میں جو آپ لوگوں کی طرف سے کوشچن ہوتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، فیملی کی جانب سے جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل نہیں کی گئی ہیں، ملزمان کو نامنیٹ کیا گیا ہے، تو اس پہلو کو پولیس کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور آگے اس کیس کو کیسے لے کے چلیں؟ دیکھیں، یہ تو قانون کے مطابق ہی ہونا ہے، اور اس میں کلیئر ہے کہ یہ تو آفٹر دا انویسٹیگیشن یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، تبھی میں آ کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ انوالو ہیں، اور اس FIR کو پھر قانونی طور پر دیکھا جائے گا۔ فرما دیں کہ آخر اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کنیکشنز کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی کس کے کنیکشن تھے؟ ایک منٹ ذرا، کس کے کنیکشن تھے اسرائیل سے؟ ایک کوئی انٹرویو ہے، اس میں ہمارے جو مرحوم صحافی صاحب ہیں وہ اسرائیل کی فیور میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور جس پر یہ لوگ آ کر انائڈ ہو کر، اور انہوں نے سر یہ بتا دیجیے گا، جو ہمارے چینل کے جو امتیاز میر صاحب تھے، ان کی جو قتل کیا گیا ان کی ریکی کتنے دن تک کی گئی، انہوں نے کیا کیا اعتراف کیا ہے، اور کب سے؟ 2 بار، ایک بار ریکی مکمل کی ہے انہوں نے، اور اس میں کوئی
इनको टारगेट हिट नहीं कर सके हैं वो। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उन्होंने इसकी रेकी की है। नॉर्मल किस्म के लोग हैं जो रेकी कर रहे थे। सर ये बताइएगा, इससे पहले सीटीडी ने भी एक मुलजिम पकड़ा था और उसका ताल्लुक भी इसी ग्रुप से था, ये एक और ग्रुप पकड़ा गया है। तो इस तरीके के कितने करदम ग्रुप हैं जो कराची का अमन-ओ-अमान खराब कर रहे हैं? पुलिस की तो बड़ी कामयाबी, लेकिन इतने कैसे ग्रुप हैं? कौन सा बैरून मुल्क हमें हालात खराब कर रहे हैं? इन्होंने माजी में भी कोई वारदातें की हैं? देखें, ये लोग कहाँ पे पकड़ा गया ये भी जरा इसमें। ये लोग जो हैं अपना 4 जो लोग हैं, इनकी जो मेन आदमी है इजलाल, इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड एक क्रिमिनल तो है, और अपना तफसील मेरे ख्याल में अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बता सकेंगे एसएसपी साहब। उसके अलावा जो 2 और हैं दे आर एक्चुअली क्रिमिनल, लेकिन पाकिस्तानी हैं, कराची के रहने वाले हैं और नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं। यकीनन मुख्तलिफ जगहों से इनको अरेस्ट किया गया है, और आप समझते हैं कि कराचीइट्स, कराची के लोग जो हैं, अगर कोई डिस्गाइज में है तो उसको क्या कर सकता है। और यकीनन मैं इससे कतई ये इनकार नहीं कर सकता कि ज़रूर क्रिमिनल का कोई भी फेस या ईमान नहीं होता है। ये बताइएगा, ये जो आपने बताया इजलाल के बारे में, ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और ये ज़ैम्बियों की जो टीम है ये पूरे शहर में काम कर रही है। जब ये काम करके चली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि काम करके चली गई है, उसके बाद आप लोग पकड़ते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क शहर में काम कर रहा है, उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार करते लोगों को? और अभी मजीद किन लोगों को ये हिट करने की पोजीशन है? इजलाल का हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये यहाँ ही घूम रहा था, या भाई हैं ही यहाँ पर, अरेस्ट ही यहाँ से हुए, कहाँ भाग गए हैं। एक वाकया हो गया है, लेकिन उसका अफसोस है हमें, बहुत बड़ा वाकया है, एक सहाफ़ी का मर्डर हो गया है और उसमें हमें अफसोस है गवर्नमेंट को, लेकिन उसकी इमीडिएट जो विदिन 1-2 हफ्तों में 3 हफ्तों में उनके जवाबदार अरेस्ट हुए, बड़ी कामयाबी है ये। और साहब, कराची में फिरका वाराना टारगेट किलिंग, मजहबी बुनियादों पर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। आप समझते हैं कराची में कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो कि एक्टिव हो गए, इनको भारत फंडिंग कर रहा है, इनको ईरान फंडिंग कर रहा है, कितनी फंडिंग करता है, किस तरह फंडिंग करता है? ये नेटवर्क तो आपने पकड़ा होगा ना? यकीनन इसमें यकीनन हमारे पड़ोसी मुल्कों की फंडिंग है और वो अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, केपी में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, कराची में मैं समझता हूँ कि वो इंटेंसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। यहाँ सर, आप बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी नहीं है। हालिया दिनों में हमने देखा कि मलीर और गुलशन मेहमान में पुलिस की टारगेट किलिंग के वाकयात रूनुमा हुए थे, उसमें क्या पेशरफ्त हो सकी है? उसमें कोई मुल्जिमान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? सिर्फ एक केस हल हुआ है जिसमें जावेद आबड़ो के भाई कत्ल केस में, यकीनन उसमें भी लोग अरेस्ट किए हैं और ये फॉरेंसिक मैचिंग कर रहे हैं उनकी जो वेपन्स हैं, और मुख्तलिफ हमारे पास सिंध पुलिस के पास वो होती हैं कि उससे पता चलता है कि ये सीरियल किलर्स कहाँ से कैसे उसको। इसमें जो सर बात बता रहे हैं, देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इस पर्टिकुलर केस में जो वहाँ से पोल मिले और जो वेपन इनसे मिले मुल्ज़मान से वो मैच कर गए, तो मतलब ये कि ज़ाहिर है कि ये अक्यूज़ जो हैं वो मैचिंग की वजह से हम उनको एट्रीब्यूट करें। फिर इंटरोगेशन हुई जिसमें सारा इन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि भाई ये वारदात उन्होंने की। और जो यहाँ से सवाल आया कि कितने ग्रुप्स चल रहे हैं, तो आप देखेंगे पिछले चंद दिनों में ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पुलिस कर रही है, और पुलिस ना सिर्फ ये कि केसेस को इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से काफ़ी सारे प्रीएम्प्ट किए हैं, बल्कि जो इस तरह की उन्हें अटैम्प्ट की या जो एग्जीक्यूट कर गए उनको
पुलिस और एजेंसीज मिलके पकड़ रहे हैं, तो मतलब पुलिस अपने एंड पे काम कर रही है। चलो आपको अलग से जवाब दे देंगे इसका, आप देखें एक जो आपने इसराइल की बात की, तो इस इसराइल की वीडियो बनाने में और भी रिपोर्टर और एंकर्स शामिल थे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपने ग्रुप अरेस्ट कर लिया तो फ्यूचर में कोई ऐसा ग्रुप एक्टिव होकर उनको भी टारगेट कर सकता है? क्योंकि इसराइल के एक पूरे वफ्द ने विजिट किया था और वीडियोस भी बहुत सारे लोगों ने बनाई थी और ट्वीट्स भी उसके ऊपर किए थे, तो उसके लिए क्या इस ग्रुप ने इंकशाफात किए हैं? कुछ तो इंकशाफात इन्होंने देखें, तालीमी याफ्ता है, BBA पास है, कोई मैट्रिक है, कोई BBA है, और यकीनन कुछ जो इनकी कास्ट हैं वो देखें तो, और सिटी के हैं, शहरी लोग हैं, और असला चलाने की या कहीं यकीनन ऐसे भी है। जो किलर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में वो करते रहे। ये जो ग्रुप है, ज़ैम्बियन ग्रुप जो है जिसको फंडिंग हो रही है, क्या मजीद ये फ्यूचर में इनके स्लीपर सेल तो मजीद होंगे ना? यकीनन है, इससे इनकार नहीं कर सकता मैं। और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बाद क्या अफगानी को निकालने की जो पॉलिसी है उसमें नरमी की गई है, क्योंकि कार्रवाइयां जो है आजकल वो कम नजर आ रही है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का ये उनका डोमेन है और वहीं से हमें इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं, और अफगानी काफ़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और वो आप एविडेंट हैं उसके लिए बिल्कुल। और यकीनन बात तो पड़ोसी मुल्कों से होती है, ये तो एक खारजी पॉलिसी है। ये सारुल्ला और ज़ैनुब्बीन के जो आपने नाम दिया, क्लियर कर दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं या ये सारुल्ला कोई नया ग्रुप? देखें, ये ज़ैनुब्बीन का ही ऑफ शूट है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।